Abdul has a taxi business and is considering investing in an additional taxi, the London or the Paris. The useful life of the taxi is expected to be 5 years and will then be scrapped with no sale proceeds. Depreciation will be provided on the straight line basis. Cost of vehicle दी हुई है, additional revenue in year 1 10,000, annual rate of increase in revenue 5% है, additional direct cost in year 1 2,000, additional rate of increase of direct cost 3% है और annual fixed cost 1600 है जो कि same रहेगी, change नहीं होगी। सर आप फिर बताना भूल गए हैं ये क्या कह रहे हो? सॉरी जी जी ये मैं बताता हूँ, मई जून 1542 है। This question I am going to read this question for you. I am not going to solve this question because there is nothing in this question new. So we'll discuss it and we'll move further. तो देखें कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 20,000 की है। रेवेन्यू सेल्स जो है वो आपकी पहले साल 10,000 होती है, अगले साल कितनी होती है 10,500 और फिर 10,500 में इजाफा होता जाएगा। पहले साल आपकी डायरेक्ट कॉस्ट 2,000 है, अगले साल आपकी कितनी हो जाएगी 2,600 और फिर 3% से इंक्रीज करता जाएगा। Annual fixed cost will not change for every year, it will remain 1,600. Cost of capital is 8%, 8% और 25% पे उसने डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है। नीचे देखें टेबल बना हुआ है आपके सामने, रेवेन्यू का, डायरेक्ट कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, नेट कैश फ्लो का, डिस्काउंट फैक्टर का, प्रेजेंट वैल्यू का। आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई नई चीज मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने घर में करना है, इसको सॉल्व करना है। और फिर डिस्काउंट फैक्टर से कहता है 25% डिस्काउंट फैक्टर से भी निकालना है और फिर IRR निकालने को कह रहा होगा ना, जारी बात है। और फिर आपने IRR की कैलकुलेशन करनी है and then you have to give the reason कि which option you are going to adopt। तो मई जून 1542 क्वेश्चन है जो कि आपने इस तरीके से इसको सॉल्व जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, जो कि है आपका मई जून 1631 का, मई जून 1631 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। देखते हैं इसको। कहते हैं जी वन ऑफ द असेंबली मशीन एट आर्म लिमिटेड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। A replacement machine will cost 3 lakh which will be paid on purchase। इसका मतलब है this is the initial investment which we have to made at the start of the year 0। The replacement machine is expected to last for 3 years। It will need maintenance checkup in year 2 at a cost of 75,000। ये important point नहीं आया है कि checkup cost आपको additional cost incur होगी 75,000 की year 2 में। The existing machine assembles 4,000 units per year। The number of units assembled by the replacement machine is expected to be 35% lower in year 1 than the existing machine due to the time lost during installation and testing। यानी कि year 1 में वो कह रहा है कि आपका जो 4,000 units है वो कम हो जाएंगे। In year 2 it is expected that 4,500 units will be assembled and this will increase by 20% each year compared to the previous year। The replacement machine will produce at a cost of 24 each। From year 2 this will increase by 25% each year compared to the previous year और होती जाएगी फिर इंक्रीज वो हर साल। The selling price will be 45 per unit। This will increase by 30% each year compared to the previous year। The cost of capital is 4%। It is assumed that all production will be sold। To distinguish between the payback method of investment appraisal and the net present value, calculate the expected net cash flow for each year for the replacement machine, calculate the payback period, calculate the net present value और उसने क्या बेनिफिट्स को भी हम जो है वो सॉल्व करना है। तो इसका मैं आपको सिर्फ कैश फ्लो निकाल के दिखाऊंगा, बस नेट कैश फ्लो निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे। तो नेट कैश फ्लो बता दें आगे वो समझ आ गया सर। हाँ जी, रिप्लेसमेंट। हाँ जी, नेट कैश फ्लो बाकी वही है आपका। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ सबसे पहले आपकी इसमें आती है जी सेल का कॉलम बनेगा आपका, वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बनेगा, ये जो भी कॉस्ट आपकी आ रही है, फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, बस आगे आपका नेट कैश फ्लो आ जाएगा। सिंपल कैश फ्लो भी लिख सकता था मैं। ईयर 0 में आपको पता है सिर्फ कॉस्ट ही ला रही है आपकी, ये ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था कैश फ्लो निकालते हैं क्योंकि दोबारा लिखने पड़ेंगे आप। 1 2 3 4 कितने साल है आगे, चलो है आगे चलो, 3 साल है जी। ईयर 0 में तो बेटा आउटफ्लो हो रहा है कितने का, 3 लाख है, सेल्स तो नहीं होगी, कॉस्ट ही है, कॉस्ट भी ना लिखे आप चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेट आउटफ्लो है 3 लाख रुपए का, कॉस्ट 3 करोड़ है, ठीक है। ईयर 1 में देखते हैं सेल्स कितनी हमारी,
ईयर 1 में वो कहता है जी कि ईयर 2 में 4500 है, ईयर 1 में कह रहा 35% लोअर हो गई यार इन ईयर 1। 4000 असेंबल्स करते हैं हम नॉर्मली 1 ईयर, 4000 35% निकालें माइनस करें, यूनिट्स आ जाएंगे, निकालें कितने आ रहे हैं, 4000 का 35% निकालें, माइनस कर दें, माइनस कर दें 4000 में से 2600 मल्टीप्लाई 45, तो सेल्स आएंगी ना आपकी। यूनिट लिखना चाह रहे हैं, यूनिट लिखना चाह रहे हैं तो लिख लेते हैं 600 117,000। वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं जी ईयर 1 में कितनी होगी हमारी। ईयर 1 में आपकी वेरिएबल कॉस्ट वो कहता है कि 24 है पर यूनिट, तो 2600 मल्टीप्लाई 24 जी 24 पर यूनिट लिखी हुई उसने कॉस्ट जो है, 2600 को मल्टीप्लाई कर दें 24 से, कितना आ रहा है 62,400 माइनस कर दें 1,17,000 से 54,600 आपका कैश फ्लो आ जाएगा ईयर 1। ईयर 2 में क्या कहता है वो, ईयर 2 में एक तो पहली बात ये है कि आपके जो इट एक्सपेक्टेड टू बी दैट 45,000 यूनिट्स विल बी असेंबल्ड, 500 यूनिट्स बनेंगे आपके। सेलिंग प्राइस कहता है जी कि हमारी क्या हो रही है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 30% बढ़ रही है, तो 45 का निकालें 30% कितना आता है, तो 45 में ऐड कर दें, हाँ ये भी कर सकते हैं 58.5 और मल्टीप्लाई 4500 263,250। वेरिएबल कॉस्ट वो कहता है वो भी बढ़ रही है, और वो कितनी बढ़ रही है जी, वो बढ़ रही है 24 है, 25% इंक्रीज कर रही है, 30 हो जाएगी। जी अब जरा गौर करें जी, इसमें आपने लिखना वाला क्या है 30,000 प्लस 75,000, ये भी आना है। क्यों सर, क्योंकि उसने कहा है कि चेकअप कॉस्ट पड़ रही है आपको ईयर 2 में, वो आपको शामिल करनी पड़ेगी। पहली लाइन में देखें, इट विल नीड कंप्लीट मेंटेनेंस चेकअप इन ईयर 2 एट अ कॉस्ट ऑफ 75,000, तो ये आपको एक्स्ट्रा पड़ रही है ईयर 2, तो ये भी आपकी कॉस्ट है, ये भी आपको शामिल करनी पड़ेगी कैश फ्लो निकालते वक्त, वो कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी, अब फिर आपके नेट कैश फ्लो आएगा ईयर 2 का। जी बेसिकली इसलिए करा रहा था, ये समझ नहीं आई भाई। वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट 24 से बढ़ के 25% बढ़ गई 6 हो गई, 30 हो गई ना, 4500 इंटू 30 करेंगे आप, लेकिन साथ में वो कह रहा है कि 75,000 आपका कॉस्ट ईयर 2 में चेकअप कॉस्ट भी पड़ती है आपको, तो चेकअप कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये 30,000 नहीं आ रहा है यार, गलत है। हाँ वही 4500 मल्टीप्लाई बाय 30 135,000 और प्लस 75,000 वो माइनस कर देंगे आप 263,250 53,250, ये आपकी ईयर 2 की आ जाएगी। ईयर 3 में वो कह रहा है कि आपके जो यूनिट्स है ना वो बढ़ गए कितने परसेंट, 20% इंक्रीज हो गए, ये आपके हो जाएंगे 5400। सेल आपकी जो है वो 30% फिर इंक्रीज कर गई मजीद 58.5 था, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 5400 410670। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। पहले साल से जो है ना आपकी सेलिंग प्राइस थी 45 मल्टीप्लाई 2600, फिर 30% बढ़ गई 58.5 हो गई मल्टीप्लाई 4500, फिर 30% बढ़ गई तो 76.05 हो गई मल्टीप्लाई 5400, ये आपकी सेल्स आ गई। कॉस्ट जो है वो भी आपकी जो है वो चेकअप कॉस्ट तो आएगी नहीं इसके अंदर, लेकिन कॉस्ट वो कह रहा है कि बढ़ रही है 20% इंक्रीज, सॉरी 25% इंक्रीज हो रही है ईच ईयर, तो 30 हो गई थी, 30 का 25% निकाल लें और वो ऐड कर दें, 30 का 25% निकालें आएगा 7.5, तो 5400 को 37.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी
2025. ये माइनस कर देंगे हम 4 1 से, तो आपका कैश फ्लो आता है 208170. 208,170, ये आपका कैश फ्लो निकालना है। बाकी सवाल आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ तक कर दिया, इसको लिख लें आप, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। निकालना पेबैक निकालने आगे आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आपने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है, वो निकाल लें, या आप इसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। जी अब्दुल्ला बताओ, मसला है तो बताओ यार। नहीं सर, क्लियर है। हाँ बड़ा आसान है, बस ये मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा टच आ जाता है इसके अंदर, मैंने जैसे बताया था आपको, और आगे थोड़ा ये टच इंक्रीज करेगा थोड़ा सा, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा काम आगे आपका नहीं है इसका। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होंगे 5-6, बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ना वो तकरीबन चैप्टर ये अच्छे तरीके से कवर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी दैट alhamdulillah all students they are able to cover the most important chapters in a better way, which include channel costing and investment appraisal, because इन्हीं 2 सवालों से सब बच्चों के नंबर कटते हैं, यानी इन्हीं 2 सवालों से ग्रेड नीचे जाता है एक्चुअली। तो मैन्युफैक्चरिंग एनपीओ भी आपका कवर हो गया, अमालगमेशन भी आपका कवर हो गया, अब बस जो है जॉइंट वेंचर भी हो गया, अब बस कंपनी और रेशियोज को थोड़ा सा तैयार कर लें आप, रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद हो तो काम चल जाएगा। तो कंपनी के सवाल हमें 2-4 करने पड़ेंगे, वो मैं इंशाल्लाह ताला करवा दूंगा। टाइम है हमारे पास बीच में, हाँ जी, पास में साथ साथ करेंगे, साथ में एक क्लास में ले करूंगा जी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, इसमें भी ये सवाल है जी कि सेल्स वॉल्यूम इन ईयर 1 वुड बी 10,000 विद सेलिंग प्राइस ऑफ 7, दिस वॉल्यूम वुड इंक्रीज राइज बाय 5% इन ईयर 2 एंड बाय अनदर 5% इन ईयर 3। ठीक है जी, पॉपुलैरिटी इज देन एक्सपेक्टेड टू फॉल इन ईयर 4 एंड देयर वुड बी अ 20% फॉल इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है 10,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस वुड नॉट चेंज, वो सेम रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि वो 7 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट थी, फिर अगले साल 4 हो जाएगी, और फिर 4 के चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट 11,000 है, फिक्स कॉस्ट पिछले साल में थी, करो यार नहीं थी, बस ठीक है, मैंने माइनस नहीं की ना, इसलिए मैं परेशान हो गया। ये सवाल भी आपका आसानी से हो जाएगा, इस सवाल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। फिक्स कॉस्ट कैश फ्लो के लिए करते हैं, बात डेप्रिसिएशन नहीं करते, वो नॉट है। हाँ, तो आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन है जी आपका, अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, और अच्छा सवाल है ये। तो कहते हैं जी एन लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं जी एन लिमिटेड इज प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच हैज एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 2,25,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 2,25,000 है, सारी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। If the project runs for 4 years, the marginal revenue and cost will be as follows. रेवेन्यू भी दिए मैं आपको 4 सालों के, और कॉस्ट भी दी हुई आपको, लेकिन कुछ और चीजें भी शामिल है। डायरेक्टर्स हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 में प्रोजेक्ट हम स्टॉप कर देंगे when the scrap value of the project's assets will amount to 1,75,000। तो 1,75,000 उस वक्त उस प्रोजेक्ट की स्क्रैप वैल्यू होगी, यानी वो पैसे आपको रिकवर हो जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, क्या होता है स्क्रैप वैल्यू का मतलब? द वैल्यू which you are going to get after the full use of the asset। तो अब year 2 आपका फुल यूज है, तो आप ये रिकवरी आपको हो रही है 175,000, ये भी इनफ्लो है, ये भी आपका इनफ्लो कंसिडर किया जाएगा। उसने पूछा कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डर, ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन की नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने बतानी है। तो मैं सबसे पहले जो आपका है ये प्रोजेक्ट ऑप्शन 1, इसको डील कर रहा हूँ, आगे समझाऊंगा मैं आपको, इसको हटा रहा हूँ। ऑप्शन 1 आ जाएगा जी आपका।
जीरो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस 2 सालों तक ही चल रहा है तो चलिए 2 सालों तक रहा है ना, क्योंकि आगे तो उसने क्या स्टॉप कर देना हम। ईयर 0 में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 225 कैश फ्लोस नेगेटिव आ जाएगा 25,000। ईयर 1 में निकालें जी कि आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करें, क्या आता है जी, रेवेन्यू कितना है, 1 लाख माइनस 31,000 कितना आ गया जी, 69,000 विल बी द कैश फ्लो। फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, ये आपका आ गया, ये आपका कैश फ्लो जो है वो आ गया। ईयर 2 का 110 ईयर 2 में क्या करेंगे जी आप, वही रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 1,10,000 माइनस 40,000 70,000, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड होगी, वो ऐड हो जाएगी 1,75,000। टोटल रेवेन्यू आपको ये जनरेट होगा, कैश फ्लो ये जनरेट होगा, वो भी रिकवर हो रही है ना आपको 245,000। यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया। आ जाते हैं इस पे आप, उसने प्रेजेंट वैल्यू का है ना निकालने को, हम निकाल लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर देखते हैं कितना दिया है, सवाल को पूरा सॉल्व करते हैं ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 0.90 और 0.826 यूज होने से तो आप लेते हैं जी, तो डिस्काउंट फैक्टर रेट ऑफ 10% इसका 1 है, इसका 0.909 0.826 प्रेजेंट वैल्यू। जी पहले की प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में ही आ जाएगी, सारी बात है, 2,25,000 जी, 69,000 into 0.909 62,721, फिर 2,45,000 into 0.826 202370 तो 62,721 भी रिकवरी हमें कैश इनफ्लो आ रहा है डिस्काउंट के बाद, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ ईयर 1, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो 202370। तो लेट्स सी कि हमें नेट कैश फ्लो क्या बनता है ईयर 2 तक, करें पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर दें, नेगेटिव वैल्यूज माइनस कर दें, तो यू विल गेट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। $40,091 ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 40,091 ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 2 देखते हैं जी अब, टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट अंटिल द एंड ऑफ ईयर 4 तक कह रहा चलाएं, व्हेन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी 75,000, तब भी स्क्रैप वैल्यू है, तब भी रिकवरी हो रही है, कितनी हो रही है लेकिन 75,000। चलें जी उस पे करके देख लेते हैं जी, इसके ऑप्शन 2 लिख लेते हैं जी, वाला आपके आ जाएंगे जी, ये 0 है जी, 1 2 3 4 कैश फ्लोस। यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम में रेवेन्यू कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई आसान था मैंने इसे लिखा नहीं, मैंने नॉर्मली पूरा चार्ट बनाते हैं लोग, मैंने लिखा नहीं, कुछ सिंपल फिगर्स थी और पहली 2 फिगर्स तो हमें वैसे ही पता है। 25,000 ईयर 1 में कितना आ रहा है 69,000, पता ही है पॉजिटिव है ना, ये 2 का ही पता है हमें, वो कितने 70,000, 1,75,000 नहीं ऐड होगा, ऑप्शन 1 का था, अब ईयर 3 में निकाल लेंगे 125,000 माइनस 59,000 जी। 66 अगर आपको ये बात सारी अच्छे तरीके से समझ आ गई है ना जो मैंने करवाया है आज, तो पेपर में आपका सवाल गलत इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, जितना भी गलत हो जाए ना नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। 90,000 माइनस 48,000 42,000 और उसमें हम शहजादा बिल्कुल ठीक ऐड कर देंगे, नो 75,000 सिर्फ। अच्छा वो मैं इसका टोटल बता रहा हूँ। हाँ नहीं आपने लिखना ऐसे ही है,
ताकि उसको समझ आए एग्जामिनर को कि यार ये बच्चे को अच्छी तरह समझ आए। डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं जी। हाँ जी 1 आ जाएगा जी, फिर 0.909 है देखिए ये कह रहे हैं आप बच्चे ही ये भी जी। 175. ठीक है जी, वो जरा चला गया है थोड़ा, फिर कर लेंगे आगे। प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी जी, निकालेंगे पहले तो वही आ जाएगी नेगेटिव ही। सीरीज 3 और 4 की नहीं निकालेंगे एमेंड पे फिर जी निकालेंगे, ऑप्शन 2 पे? जी निकालेंगे, निकाल तो रहा हूँ मैं नहीं 70,000 मतलब सिर्फ 1 2 की भी निकालेंगे, जी। साथ 1 2 की भी निकालेंगे, ईयर 1 और 2 की। सारी बात है यार, वो तो हमने पूरा प्रोसेस तो वही रखना है अपना। उसने बात ही ईयर 4 तक बात की तो ईयर 4 तक हमने निकालना है। 57820. ऑप्शन 2 एक अलग क्वेश्चन है यार, दिस क्वेश्चन कैरीज 2 क्वेश्चंस। ऑप्शन 1 एक अलग क्वेश्चन, ऑप्शन 2 एक अलग क्वेश्चन है। 4956. में आपका आ जाएगा जी 42,000 प्लस 75,000 इनटू 0.68 जी। 799. पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लें और उसमें से नेगेटिव वैल्यूज को माइनस कर लेंगे। इससे मतलब है कि हमें ऑप्शन 1 जो है वो ज्यादा बेहतर है, तो ये 2 में ही हम जो है वो हम क्लोज कर दें प्रोजेक्ट को, दैट विल गिव अस मोर बेनिफिट। उसकी रीजन बेसिकली क्या है कि बाद में जो कैश फ्लोज हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं असल में, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज आफ्टर 2 years आर डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई रिटर्न इज बेसिकली गेटिंग लोअर आफ्टर सेकंड ईयर, so that is why we are going to close the project in 2 years because we are getting more better net present value in year till year 2। समझ आ गई जी क्वेश्चन जी? ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया, बाकी सिंपल है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल है बस लास्ट Isha is considering buying a new machine। उससे अगला सवाल क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Tisha is considering buying a new machine for the further factory. The machine will cost 1,25,000 initial investment है। At the end of year 5 the machine will be sold for 65,000। तो year 5 में 65,000 का कैश इनफ्लो मजीद होगा जो आप ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि उतने की बिक जाएगी तो जो year 5 में जो पैसे रिकवर तो 65,000 का आप कैश फ्लो और ऐड करके लिखेंगे 5th ईयर के अंदर, क्योंकि 5th ईयर में ये भी पैसे आपको मिलेंगे जी। सर पिछली वर्किंग दिखा सकते हैं एक दफा? जी जी याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू जो है, वैसे आपके कोर्स में स्क्रैप वैल्यू का सवाल अब नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि 23 से उन्होंने ये निकाल दिया, स्क्रैप वैल्यू का पोर्शन सर क्वेश्चन से निकाल सर दिया। हो गया मेरा। नहीं आएगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का पोर्शन भी निकाल दिया, लेकिन हमें करना तो है, हमारे तो कोर्स में है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो भी निकाल दिया। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है कि डिस्काउंट फैक्टर करके जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ना ये वाली, इसका फिर निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बस ये फर्क है। 22 तक है हमारे कोर्स में, लेकिन सवाल नहीं आएगा, मैंने बताया। आपका अंदाजा है? ये मेरा अंदाजा ही होता है यार, मेरे अंदाजे यकीन नहीं होते, आपको पता तो है। The following information is available. The current annual sales volume of the existing product is 10,000 units. This will remain constant over the 5-year period. ठीक है जी, 10,000 है। The selling price per unit is currently 12. Tisha plans to increase this to 13 per unit to help cover the cost of the new machine. The variable cost is currently 5 per unit. This is expected to fall to $3 per unit by using the new machine. The maintenance cost for the new machine will increase the annual fixed cost by 5,000. At the end of year 1, Tisha will have to a one-off service fee of 1,000, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो कहते हैं जी, prepare one table which show the change in cash flow in year 0 to 5 that arise as a result of the purchase of machine. Calculate the payback period
यूजफुलनेस ऑफ पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू कह रहा है निकालना और आई कह रहा है निकालना है, बहुत सिंपल सा कह रहा है। तो इसका चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी आप घर में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं बताता हूँ। ईयर कितने जी, 5 ईयर है इसमें। जीरो है जी, 1 2 3 4 5। सबसे पहले उसने क्या कहा, क्या क्या चीजें हैं, मैं सारी कॉलम बना के लिखना चाहूंगा। हाँ जी, यूनिट्स, इंक्रीज इन सेल्स। सर ये आसान सवाल है, आसान नहीं है ये सवाल, सवाल चेंज है बिल्कुल। Increase in variable cost. आगे जी, वन ऑफ सर्विस। हाँ मतलब सर्विस भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पहले साल में आना है ना साल। सेकंड है, ईयर 1 है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट भी है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे। This is not an easy question. This is not an easy question. अब देखिए हो क्या रहा है, सवाल समझना कैसे आपने, सवाल आसान है, मसला ये है भाई, करंट एनुअल सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज 10,000 यूनिट्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट 10, हमने इंक्रीमेंटल सेल, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेनी होती है बेटा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेनी होती है। जो इस प्रोजेक्ट की वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू है, जो इस प्रोजेक्ट की वजह से कॉस्ट जनरेट हो रही है वो हमारी कॉस्ट है। तो हमारा रेवेन्यू जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। तो अब देखें आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज कर रहा है, $1 10,000 पर, तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज करेगा, 10,000 यूनिट्स है, और हर यूनिट पर कितना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, 1। तो इंक्रीज इन सेल्स कितनी आ जाएंगी, 10,000 आएंगे इंक्रीज इन सेल्स। यही तो कमाल है। ये देखिए, करंट एनुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज करंटली 12। दिस Tisha plans to increase this to 13 to help cover the cost of the new machine. नई मशीन की वजह से $1 का सेल में इजाफा हो रहा है, सेल में इजाफा सिर्फ $1 का हो रहा है, 12 से 13 नहीं इंक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंटल सेल्स लेनी है आपने, मतलब $1 ले जी, क्योंकि 12 से 13 नहीं हो रहा है, नहीं 12 से 13 हो रहा है, लेकिन हमारे 12 और ऑलरेडी अवेलेबल है, 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी बेच रहे थे। नई मशीन से क्या हो रहा है वो देखना है आपने, नई मशीन से $1 सेल में इजाफा हो रहा है सिर्फ, ठीक है जी। तो ये सब के सब 10,000 आ जाएंगे। ईयर 2 में भी कितनी इंक्रीज इन सेल्स है, 10,000। ईयर 3 में भी आगे वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, वो भी कॉस्ट नहीं है, बेनिफिट है। आपको 2 यूनिट का बेनिफिट हो रहा है, 5 तो आपको कॉस्ट बढ़ रही थी, नई मशीन की वजह से कॉस्ट फॉल कर गई है 2 से, वो डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो है। 10,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट्स है ना आपके, हर यूनिट पर $2 का इनफ्लो हो रहा है, तो कितना आएगा, 20,000। सबका 20,000 आएगा, लेकिन ये 1 के एंड पे कुछ और भी हो रहा था, एक वन ऑफ सर्विस फी थी, वो किस में आ जाए, कितनी है, वो नेगेटिव में आएगी। वेरिएबल कॉस्ट पहले साल में भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपने 20,000 के समझ आ रहा है, 10,000 इंटू 2 फिर Five कॉस्ट से डिक्रीज three कर पे रही है हो गई। डिक्रीज हो रहा है। जी। 5 से 3 to 2 है। सवाल है,
हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? I will increase annual fixed cost by 5,000. 5,000, 5,000। देखा ना, इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो 5,000 ही रहेगी। 5,000. ये अब आपका बना है हमारा। अब हमने निकालना है कैश फ्लोस। पहला कैश फ्लो हमारा कितना आएगा? पहला तो नेगेटिव ही है। कितना है शुरू में? पर देखिएगा जरा, 125,000. 125,000 नेगेटिव। दूसरे में क्या हो रहा है जी? 10,000 प्लस 20,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000। ये नेगेटिव है 5,000। 10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 30,000 माइनस 1,000 29,000। 29,000 माइनस 5,000 कितना कैश इनफ्लो आ गया? 24,000 का कैश इनफ्लो आ रहा है फर्स्ट ईयर में। इसको नेगेटिव कर दूं, कहते हो तो? नहीं वो है फिर 10 प्लस 20 30, 30 माइनस 5 25, 25 का इनफ्लो आ रहा है। अगले साल भी मशीन जो बेची उसका ऐड हो जाएगा। 65 25 में आएगा। अभी यहाँ पे कैश फ्लोस आ गया और अब आप नीचे सॉल्व करेंगे जो आपने करना डिस्काउंट मुझे फैक्टर। सेल्स ही समझ नहीं बाकी सारा समझ आ गया। सेल्स वो कह रहे हैं Sales देखें, मुझे समझ नहीं है कि आपने सेल्स की वैल्यू नहीं दी इसमें। वो तो उसने बोला है द करंट एनुअल सेल्स वॉल्यूम ऑफ द वो कह रहा है करंट सेल्स है ही 10,000। ओवर द 5 ठीक है। ईयर। यानी कि अगर आप रेप्सन मशीन नहीं भी बनाते हो, हाँ जी नहीं भी करते, तब भी आप 1000 यूनिट्स तो बेच ही रहे हो। ठीक है। अब जब आपने रेप्सन मशीन ली है तो आपकी यूनिट्स उतने ही बिक रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस में $1 का इजाफा हो गया। तो ओवरऑल सेल में इजाफा कितना हुआ? 10,000 का, नई मशीन की वजह से, क्योंकि $1 का इजाफा हो रहा है। $12 की तो पहले भी बिक रही थी। इंक्रीमेंटल सेल्स लेनी है, एडिशनल सेल्स लेनी है और एडिशनल कॉस्ट लेते हैं, लेकिन एडिशनल कॉस्ट में कॉस्ट सेविंग हो रही है। 1000 की सर्विस कॉस्ट पड़ रही है आपको पहले साल में, बाकी कॉस्ट सेव हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वो माइनस कर रहे हैं आप इसमें। बेचेगा हम लंबे तरीके से करते हैं 10,000 इंटू 13 माइनस 10,000 इंटू 12। यस आपने सीधा ही उसको एक से जी बिल्कुल। आने 10,000। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज वन ऑफ देम। आज मैंने एक करवाया है क्योंकि बाकी तो घर में दिए थे करने के लिए, मैंने उसको सिर्फ रिपीट करवाया था। ये घर में जाके आप कंप्लीट कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं भी क्लास चल रही है, आधा घंटा शुरू हो गया। ले लो। इसको रिकॉर्ड कर लें। हाँ, वो बाकी तकरीबन इस तरह के क्वेश्चन तकरीबन 5-6 होंगे मजीद इस टाइप के, तो थोड़े से डिफरेंट है। 5-6 हैं, वो हम कर लेंगे तो हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मैं अभी 11 बजे 12-25 पे नहीं आया। जी अब्दुल्ला समझ आ गई है? जी सर। बताएं इसको मान लो कि कितने चलो दोस्त को ठीक आपको है, मार्क ओके आए। थैंक यू जी, हाफिज।